If you ask me what is that one examination for which I have dedicatedly prepared after JEE, it would be colleges में मेरे को CSE मिल जाता, but I still decided to explore some other options. With this rank, I'm obviously not gonna get VIT Vellore या फिर चेन्नई का CSE. I was still getting VIT अमरावती and VIT भोपाल. So when the COMET के results came, कुछ तो ऐसा scam हुआ है ये लोग का इस बार, ठीक है, सारा scam इसी साल होना है. I remember one teacher saying me that ये बाल और नाखून बढ़ाने से ना कुछ नहीं होता है. Hi guys, welcome back to my channel. If this is the first time watching, hi, my name is Suman and I hope you all are in pink of your health. I know it's been days since I posted anything on YouTube and that's why कल हम ट्राई भी किए थे वीडियो बनाने का राखी वाले दिन, बट हम बना भी लिए थे वीडियो, बट एट द टाइम ऑफ एडिटिंग मेरे को वीडियो खुद को ही अच्छा नहीं लगा, सो आई डिसाइडेड टू रीफिल्म इट टुडे एंड दैट इज़ द मेन रीज़न कि आपको मेरा थंबनेल में कुछ अलग ही मेरा लुक दिख रहा होगा दैन द ओरिजिनल वीडियो, बिकॉज जो थंबनेल में मेरा लुक है वो कल का वीडियो से है एंड आज हम अलग से वीडियो बना रहे हैं, तो आई एम नॉट गोना एडिट द थंबनेल एनी मोर. So I think that's enough of explanation. Now, before starting today's video, I would like to give you guys a quick life update. Actually, I was supposed to leave for my hostel on 11th of August because the tentative date for NIET classes to start was on 18th or 19th of August. And from West Bengal to New Delhi, it's a whole one-day journey. So I booked my tickets accordingly. But few days back only, I got to know that the classes are now postponed. And now the classes are gonna start from first week of September. At least this is what they have said for now. I don't know what's coming next. So now that I'm left with enough time, I'm planning to get started with basic coding because honestly I have not started anything yet. Now those who are from NIET, they must be knowing that we are provided with a webinar session in which we will be taught about generative AI and autonomous vehicle by Rahul sir and Girish sir. So I am planning to get started with that only at first, and I am someone who likes to plan the whole future in their head beforehand only. So मेरे को था कि after uploading that hostel essentials वाला video, I will upload hostel packing वाला video in which I will be packing for college, hostel, whatever. But since I'm not going now, so I'm not uploading that video also and I have not shot that video also क्योंकि अभी तक हम packing भी नहीं किए हैं. So this was the main reason I didn't upload anything on YouTube क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाया हम. Now before starting today's video, I would like to give you guys a disclaimer that this video is not gonna be informative. This video is gonna be more sort of a story time. So if this is something you are not interested in, you can straight away skip this video. So today I'll be sharing with you guys that how my drop year went and why I decided to take a drop and everything. This topic is actually very close to my heart because I have been at my lowest during this time only, and I don't know how I convinced myself to share this part of my life on an open platform like YouTube. But I did. One thing always happens with me that whenever I talk about something openly, it stops bothering me as much. Like remember Newton wala thing? I uploaded a video that I am not joining Newton, and trust me, before uploading that video, I had hundreds of thoughts in my mind that I am gonna get judged badly because previously I made already 2 videos ranting that I am gonna join Newton, and suddenly I am not. But to my surprise, there were so many of you who could relate to my situation, and after reading all the comments, that FOMO inside me of not joining Newton got fully vanished. And likewise today I'm gonna take you through my drop year journey, what was my plan B after JEE, so that I can also feel a little lighter before starting the college fresh. Okay, so before starting the main part of the story, I would like to give you all a backstory of my 11th and 12th because 11th and 12th plays a very vital role in our today's story. You will get to know how. Now cut to 2022 when I was giving my 10th board examination. Now droppers could relate to me that our board started in the last week of April and ended somewhere in May, and we were the fresh batch after Corona. ठीक है, तो you all know कि कोरोना में कैसा पढ़ाई होता है. So honestly speaking, मेरे को क्लास 10 तक JEE का J भी नहीं पता था. It's strange but it is what it is. And mind you, I was always the topper of my class. ऐसा भी नहीं था कि I was a dumb kid कि मेरे को पता नहीं था या फिर कुछ. But at that time I was not as much serious कि मेरे को 10th के बाद में क्या करना है. Honestly speaking, मेरे को ये भी नहीं पता था कि मेरे को stream क्या choose करना है. I was slightly tilted towards science because all of my friends were taking science only. I also had commerce as an option क्योंकि मेरे को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना था, but here I am doing engineering. I was like ठीक है, 10th का पढ़ाई कर रहा है ना, हो जाएगा. So our 10th results came and 10th में मेरे को आया था 90%, dot 90%, not 89.8 or 90.2. मेरे को dot आया था 90%. So yes, you can say I was lucky enough to get overall 90% and I secured 4th rank in my class and I was the girl topper of my school. And उस टाइम पे जो टॉपर था उसका भी कुछ समथिंग अराउंड 93% बन रहा था, तो मेरे को उतना इफेक्ट भी नहीं किया कि ठीक है 2-3% का ही डिफरेंस
से कुछ नहीं होगा उससे. सो नाउ इट वॉज टाइम टू चूज़ दी स्ट्रीम एंड आई चूज साइंस फॉर टिपिकल रीजन्स कि उसमें करियर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं एंड एक प्रेस्टिजियस स्ट्रीम है. एंड दोज हु आर वॉचिंग फ्रॉम एनी अदर स्ट्रीम, प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड, जस्ट टेक इट एज अ स्टोरी. मेरा कोई मोटिव नहीं है कि हम आपको ऑफेंड करें. ओके, सो नाउ इट वॉज अगेन टाइम टू चूज बिटवीन कंप्यूटर साइंस एंड बायोलॉजी. लाइक अगर आप PCM ले चुके हैं तो अब उसमें आपको कंप्यूटर साइंस लेना है या फिर बायोलॉजी लेना है. मेनी स्टूडेंट्स वेर ऑप्टिंग फॉर PCM, PCB एंड PCMB बोथ. सो आई ऑप्टेड फॉर PCM प्लस कंप्यूटर साइंस. तो मेरा क्लास 11th एंड 12th में मेरा कंप्यूटर साइंस था. एंड आफ्टर क्लास 10th आई ज्वाइन दिस कोचिंग कम ट्यूशन दैट क्लेम्ड कि वो आपको NIT, IIT एंड एम्स से पहुंचा सकते हैं, बट रियलिटी हम ही लोगों को पता था. तो ये एक लोकल कोचिंग था, तो अपना एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल भी हाई मत करना. एंड ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स वेर इन दैट कोचिंग ओनली, सो यू ऑल कैन प्रेडिक्ट दैट व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट. वी गॉट फुल फ्रीडम फ्रॉम आवर हाउस इन द नेम ऑफ ट्यूशन. वी यूज टू गो टू आवर कोचिंग कम ट्यूशन एट 11 AM इन द मॉर्निंग एंड रिटर्न बैक होम एट 7 PM. भाई साहब, हम लोग का जिंदगी था 11th में. हम लोग बैग उठा के जा रहे हैं 11 बजे सुबह में एंड लौट के आ रहे हैं 7 बजे शाम में, खाना पीना खा रहे हैं, सो जा रहे हैं, फिर वही बैग उठा के हम लोग जा रहे हैं 11 बजे. मतलब बैग का चेन भी नहीं खुलता था घर आने के बाद में, वो सीधा खुलता था. आज खुला है वो कोचिंग में तो कल भी खुलेगा वो कोचिंग में. तो इतना मजा वाला जिंदगी हो गया था ना हम लोग का. एंड हम लोग को लगता था जेई वो क्या होता है, हम लोग अपना जिंदगी जी रहे हैं ना भाई. अभी तो 10th का बोर्ड्स खत्म हुआ है, अभी चिल करेंगे, उसके बाद में पढ़ाई स्टार्ट करेंगे. एंड बाय दिस टाइम वी फुल्ली डिश्ड आवर स्कूल. स्कूल कोई भी नहीं रहता था भाई, वहाँ पे सिर्फ हम लोग का ट्यूशन चलते रहता था. हम लोग सिर्फ पढ़ाई के नाम पे वहाँ पे बैठ के मस्ती कर रहे हैं. एंड उस कोचिंग में पढ़ाई रत्ती भर का पढ़ाई नहीं होता था. वहाँ पे कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर मारपीट कर रहा है, कोई इधर ये कर रहा है. हम लोग का अलग ही गॉसिप चल रहा था. तो जिंदगी हम लोग जिए क्लास 11th में. एंड ऐसे करते करते सितंबर कब बीता, अक्टूबर कब बीता, पता ही नहीं चला. एंड इन दैट कोचिंग आवर केमिस्ट्री फैकल्टी यूज टू चेंज एवरी 10 days. आई किड यू नॉट, एवरी 10 days वो लोग का केमिस्ट्री का फैकल्टी चेंज होता था. एंड ऑर्गेनिक का तो हम लोग का सिलेबस पहुंचा ही नहीं था. हम लोग का फिजिकली बहुत मुश्किल से खत्म हुआ था कि इनऑर्गेनिक में जाएं या फिर ऑर्गेनिक में जाएं, हम लोग को समझ ही नहीं आता था. तो दिस इज द मेन रीजन दैट व्हाई माई केमिस्ट्री इज सो फक्ड अप. मेरे को ऑर्गेनिक से मेरे को इतना नफरत है ना ऑर्गेनिक से. मेरे को ऑर्गेनिक समझ ही में नहीं आता है. आई डिडंट टच ऑर्गेनिक इन माई क्लास 11th, क्लास 12th, नॉट इवन इन माई ड्रॉप ईयर. ड्रॉप ईयर में तो टाइम ही नहीं मिला मेरे को ऑर्गेनिक करने का. हम सिर्फ बेसिक करके गए थे. रायमंड-टाइमन रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, ये सब हम करके गए थे कि इससे कुछ आएगा तो हम कर लेंगे. बट आई विल टेल यू एवरीथिंग वन बाय वन. ओके, सो हम लोग कहाँ पे थे? यस, तो हम लोग पूरा अपना मस्त जिंदगी जी रहे हैं. एंड क्लास 11th वॉज दी सेम क्लास दैट गेव मी लाइफ टाइम ट्रॉमा. आई विल टेल यू व्हाई. 11th वॉज सो मच हैपनिंग. इन स्टार्टिंग इट वॉज ऑल फन एंड एवरीथिंग. एंड लास्ट तक आते आते मेरा जो एकेडमिक डाउनफॉल हुआ भाई, आई वॉज ऑलवेज अ टॉपर, आई टोल्ड यू. बट मेरा केमिस्ट्री में रीटेस्ट लग रहा है, मेरा मैथमेटिक्स में रीटेस्ट लग रहा है, मेरा फिजिक्स में रीटेस्ट लग रहा है. एंड टीचर्स वेयर लाइक कि सुमन भारती को क्या हो गया है, ये ना पढ़ रही है ना लिख रही है, डिस्ट्रैक्ट हो गई है, पंख लग गया है. आई रिमेंबर वन टीचर सेइंग मी कि ये बाल और नाखून बढ़ाने से ना कुछ नहीं होता है, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, नया नया पंख लग गया है तुमको, पढ़ाई लिखाई से पूरा नाता रिश्ता टूट गया है. एंड आई वाज लाइक यस मैम, बिकॉज सी आई कांट बी डिसरेस्पेक्टफुल टू माई टीचर्स. ठीक है, क्योंकि बचपन से लेकर क्लास 10 तक आई हैड अ गुड रेपुटेशन इन माई टीचर्स आईज. ठीक है, तो सी दिस इज़ अ वेरी बेसिक थिंग कि अगर कोई एक एवरेज सा बच्चा है या फिर बैक बेंचर है, अगर वो टीचर से मुंह लगाए या फिर टीचर को उल्टा सीधा बोले तो एक समझ में भी आता है. बट बीइंग अ टॉपर इट वॉज वेरी हार्ड फॉर मी. ठीक है, हम अचानक से उनको एटीट्यूड नहीं दिखा सकते हैं, राइट. एनीवेज, moving on, so this was the case. I tried a lot to cope up with the studies but somehow I wasn't able to do so. and class 11th में मेरा लग गया रीटेस्ट. एंड रीटेस्ट भी लगा मेरा केमिस्ट्री में. तो जब हम रीटेस्ट देने के लिए गए तो दैट वाज द मोस्ट ह्यूमिलिएटिंग थिंग आई कुड एवर एक्सपीरियंस. बट समहाउ आई मैनेज टू पास द एग्जामिनेशन. एंड इन क्लास 12th आई चेंज माई कोचिंग ऑब्वियसली. एंड क्लास 12th में हम कोई भी कोचिंग में इनरोल नहीं थे. क्लास 12th में हम अलग अलग ट्यूशन लिए थे, लाइक फिजिक्स के लिए अलग ट्यूशन, केमिस्ट्री के लिए अलग ट्यूशन, मैथमेटिक्स के लिए अलग ट्यूशन. सो दिस वॉज द केस. एंड इन क्लास 12th आई वॉज स्ट्रगलिंग टू पास इवन माई पीरियोडिक टेस्ट. अगर उसका पासिंग मार्क्स 33 है तो मेरा 35, 34 ऐसे आ रहा है. मतलब एकदम मुश्किल से, जिसको पास होना बोलते हैं ना, हम मुश्किल से सब सब्जेक्ट्स में पास हो रहे थे. एंड माई टीचर्स वेयर लाइक कि सुमन क्या हो गया है, क्यों पढ़ाई लिखाई नहीं हो रहा है, क्यों ऐसे कर रही हो, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो. एंड एट द एंड आई डिसाइडेड टू नॉट टू गो टू स्कूल एनी मोर. ठीक है, हम स्कूल जाना ही बंद कर दिया क्योंकि मेरे को नहीं अच्छा लगता था, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता था. क्योंकि अगर मेरे को कोई ऐसे आके बोल दे रहा ना पूरा क्लास के सामने, इमेजिन कि आप टॉपर हो क्लास 10 तक एंड सडनली आपको टीचर सबके सामने में आके बोल रहे हैं कि क्या हो गया है, पढ़ाई लिखाई नहीं करती हो, डिस्ट्रैक्ट हो गई हो, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, बोर्ड्स आने वाला है, इतने से नंबर में क्या होने वाला है तुम्हारा, क्या नहीं होने वाला है. एंड आई वाज सो फेड अप ऑफ लिसनिंग दिस थिंग्स दैट आई स्टॉप्ड गोइंग टू माई स्कूल.
एंड टीचर्स जो थे मेरे पेरेंट्स भी कोई कम नहीं थे. माई पेरेंट्स यूज टू मॉक मी एवरी डे कि क्या हो गया है, पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है. एंड ट्रस्ट मी, आई वॉज ट्राइंग सो हार्ड, क्योंकि क्लास 11th मेरा पूरा बर्बाद था. ठीक है, क्लास 11th में आई डिडंट इवन स्टडीड अ सिंगल वर्ड. क्लास 11th में मेरे को ये भी नहीं पता था कि ये चैप्टर कौन से सब्जेक्ट से है. तो यू कैन अंडरस्टैंड दी लेवल ऑफ माई एकेडमिक परफॉर्मेंस. एंड दोस्तों से ना कि क्लास 11th नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, क्लास 12 से फ्रेश स्टार्ट करो, क्लास 12 से खींच के एक छापड़ मारेंगे उसको हम. आई एम टेलिंग यू, इफ़ यू आर समवन इन क्लास 11th या फिर क्लास 11th में जाने वाला है, प्लीज़ डोंट फक अप योर क्लास 11th. ठीक है, क्योंकि अगर एक बार आपका क्लास 11th बर्बाद हो गया ना, आई एम टेलिंग यू, यू विल गेट स्मैश्ड इन योर क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन, क्योंकि इट्स नॉट ईजी, इट्स रियली वेरी वेरी हार्ड. आई एम टेलिंग बाय माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि वो कितना हार्ड हो जाता है. अगर आप 11th में अच्छे से नहीं पढ़े हो ना, अगर आपका 11th क्लियर नहीं है तो आप 12th नहीं कर सकते हो. आई एम टेलिंग यू, कोई भी आपको कितना भी मोटिवेट कर लेना, आप नहीं कर सकते हो. क्लास 12th बिना क्लास 11th का नहीं कर सकते हो. आपको क्लास 11th पहले पढ़ना पड़ेगा. अगर आप पूरा क्लास 11th नहीं भी पढ़ रहे हो ना, तो बेसिक टॉपिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा. उसके बाद में आप 12 करो. एंड ट्रस्ट मी, 12 में इतना टाइम नहीं होता है दैट यू आर गोना गिव स्पेशल टाइम टू योर क्लास 11th एंड देन टू योर क्लास 12th, क्योंकि क्लास 12th में ऑलरेडी आपके ऊपर में बोर्ड्स का प्रेशर रहता है. सो समहाउ आई मैनेज टू पास माई 12th एग्जामिनेशन विद डिसेंट मार्क्स. ना ही कुछ ज़्यादा ही अच्छा, ना ही कुछ ज़्यादा ही खराब. एंड क्लास 12th में मेरा सिर्फ फोकस था कि हम कैसे भी करके बोर्ड्स पास कर लें विद डिसेंट मार्क्स, क्योंकि मेरे को पता था कि मेरा एक भी सब्जेक्ट में अगर रिपीट आया ना, आई ऑल्सो डोंट नो दैट व्हाट माई पेरेंट्स आर गोना डू. ओके, सो ये तो हो गया मेरा बोर्ड्स का स्टोरी. नाउ कमिंग टू माई जेई स्टोरी. ठीक है, इन क्लास 12th आई डिडंट न्यू अबाउट एनी अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन अपार्ट फ्रॉम जेई. आज के जितने भी पॉपुलर एग्जामिनेशन है, जैसे VIT हो गया, MIT हो गया, कॉमेट के हो गया, मेरे को ये सब के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था. आई डिडंट इवन न्यू दैट दोज एग्जिस्टेड. सो इन क्लास 12th आई ओनली अटेम्प्टेड माई जेई फर्स्ट अटेम्प्ट. सेकेंड अटेम्प्ट तो हम दिए भी नहीं थे, डर से नहीं दिए थे हम. तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आई समहाउ मैनेज्ड कि हम जाके एग्जामिनेशन दे सके. एंड ऑल्सो उस टाइम तक माइंड यू मेरा बोर्ड एग्जामिनेशन का सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ था, बट जितना मेरे को आता था हम जाके जेई में तुक्का मार के आए. एंड गेस व्हाट, मेरे को कितना मिला? मेरे को मिला 38 परसेंटाइल. यस, मेरे को 38 परसेंटाइल आया था, वो भी तुक्का स्ट्रैटेजी से. मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ जेई में, जो कि था 12th में जो हम दिए थे जनवरी अटेम्प्ट. सेकेंड अटेम्प्ट हम दिए ही नहीं था, मेरे को पता था कि मुझसे नहीं होने वाला है, हम नहीं देने वाले हैं सेकेंड अटेम्प्ट. सो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा 38 परसेंटाइल आया था. एंड नाउ एट दिस पॉइंट व्हाट अ सेंसिबल पर्सन वुड डू? Obviously leave JEE and opt for some random colleges and get into that. But me being me, मेरे को ये भी नहीं पता था कि मेरे को कॉलेज में कौन सा जाना है, मेरे को कोर्स कौन सा लेना है. मेरे को था कि हाँ ठीक है बीटेक करेंगे, बीटेक में क्या कौन सा ब्रांच में जाना है. So I wasn't even aware of a single thing of college, so I ended up taking a drop. Now before anybody comments anything, let me clear one thing, that my drop year has taught me so many things. अगर हम ड्रॉप नहीं लिए होते ना, तो अभी हम एक कोई रैंडम सा कॉलेज से कोई रैंडम सा डिग्री कर रहे थे जिसका मेरे को कोई यूज़ भी नहीं आता फ्यूचर में. So yes, I am very thankful that I took a drop. Anyways, moving on. So I made my mind clear that I am gonna take a drop for JEE. एंड ऑल्सो हम उस टाइम पे ये भी सोच लेते कि मेरे को घर से बैठ के कुछ नहीं करना है. आई डेंट वॉन्टेड टू गो फॉर ऑनलाइन क्लासेज, सो आई ऑप्टेड फॉर PW विद्यापीठ नियरेस्ट टू माई हाउस, विच वॉज 65 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माई होम. सो आई ऑप्टेड फॉर हॉस्टल फॉर ऑब्वियस रीजन्स. एंड व्हेन आई वेंट देयर फॉर द फर्स्ट टाइम, द टीचर्स वेर आस्किंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स कि आपका जेई का प्रीवियस परसेंटाइल क्या था. एंड वो सुन के मेरा जो हाथ पैर फूला है. आई सेड कि सर आई गॉट 81 परसेंटाइल, बिकॉज आई न्यू कि एवरीबडी इज गोना लाफ एट माई डिसीजन कि after getting 38 percentile also I am opting for a JEE drop. So I decided to not tell anybody. And after seeing the crowd, I understood कि IIT तो नहीं होने वाला है अपने से. And also that was the time I made my mind very clear कि I am going for CSE only, क्योंकि मेरे को वहाँ पे जाके पता चला कि हाँ CSE अभी ट्रेंड में है. So I decided कि हम कॉलेज का टैग नहीं देखने वाला है, मेरे को CSE करना है एंड कोई अच्छे से कॉलेज से करना है. ऐसा भी नहीं कि CSE कोई घटिया से कॉलेज में मिल रहा है तो हम उससे कर लेंगे, नहीं. मेरे को उसी टाइम समझ में आ गया था कि हाँ ठीक है कितना इंपॉर्टेंस होता है कॉलेज का. ऑल्सो आई वॉज नेवर अ काइंड ऑफ पर्सन हु कुड स्टडी फॉर 11 to 12 hours straight. I was always that type of student who could study for max to max 5 to 6 hours, and in class 10th and 12th maybe also 6 to 7 hours was my maximum limit. So it took me 2-3 months to get adjusted to that routine, and that time also I could hardly study for 6 to 7 hours straight. उससे ज़्यादा मेरा कैपेसिटी नहीं था एंड हम अपने आप को पुश भी नहीं किया उस टाइम पे. आई वाज लाइक ठीक है लास्ट टाइम में देखा जाएगा, लास्ट टाइम में पुश करेंगे अपने आप को. एंड इन माई ड्रॉप ईयर आई स्टडीड माई क्लास 11th अच्छे से फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. विश्वास नहीं हो रहा है ना, बट ऐसा ही था. हम 11th में पढ़े थे, इतना पढ़े थे कि हाँ पास हो जाए, लेकिन अच्छे से हम अपने ड्रॉप ईयर में ही पढ़े थे. एंड नाउ व्हेन आई गेव माई कोचिंग फर्स्ट मॉक टेस्ट, मतलब टेस्ट मॉक टेस्ट नहीं टेस्ट,
तो आई स्कोर्ड अराउंड 90 या फिर 92 समथिंग था. एंड इफ़ यू हैव बीन अ JEE एस्पिरेंट यू नो दैट मार्क्स वुड गेट यू अराउंड 85 to 86 परसेंटाइल. सो आई वाज सेटिस्फाइड इनफ एंड आई डिसाइडेड कि ठीक है आगे जाके इम्प्रूव करेंगे. सो दिस वॉज माई स्कोर थ्रू आउट द ईयर. आई यूज टू गेट अराउंड 110, 115, 120 ऐसे 100 to 130, 40 तक मेरा मार्क्स रहता था. एंड बाई दिस मार्क्स आई एक्सपेक्टेड अ परसेंटाइल ऑफ 95 to 96, even though it is not enough to get you into NIT CSE, but it is enough to land you into a good college CSE. So I expected a percentile around 95 to 96 and मेरे को था कि ठीक है अभी जनवरी अटेम्प्ट में इतना ही टारगेट करते हैं एंड अप्रैल में व्हाट इफ अगर कुछ इम्प्रूव कर पाएँ तो. सो दिस वाज माई टारगेट एंड आफ्टर माई छठ पूजा आई डेडिकेटेड माई होल टाइम टू दिस एग्जामिनेशन. हम जितना 3 साल में नहीं पढ़े होंगे ना उतना आई हैव स्टडीड इन माई लास्ट 3 months ऑफ द एग्जामिनेशन. सो आई हैड माई एग्जामिनेशन ऑन 24th of January shift 2 एंड टू माई सरप्राइज केमिस्ट्री वेंट वेल फॉर मी बिकॉज अगर आप पेपर उठा के देखोगे उस शिफ्ट का 24th जनवरी को ऑर्गेनिक बहुत ही कम पूछा गया था केमिस्ट्री से. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वेर फ्रॉम फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल इनऑर्गेनिक तो मेरा पहले से ही अच्छा था मतलब हम अच्छा बना चुके थे अपना ड्रॉप ईयर में. तो आई फोकस्ड ऑन फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक ओनली. ऑर्गेनिक हम टच भी करके नहीं गए थे ड्रॉप ईयर में. मतलब बेसिक हम रिएक्शन किए थे कि हाँ रायमंड टाइमन रिएक्शन हो गया, वुड्स रिएक्शन हो गया, ये सब हम रिएक्शन पढ़ के गए थे. बट स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक का क्वेश्चन में से नहीं बनता. तो आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर दैट कि हाँ केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक का जितना भी क्वेश्चन होगा उसको हम छोड़ने वाले हैं, केमिस्ट्री में से नहीं होगा. हम सिर्फ फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री का फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक के भरोसे गए थे कि अब जो होगा देखा जाएगा, फिर अप्रैल अटेम्प्ट में देखेंगे जितना होगा. सो सरप्राइजिंगली उस दिन मेरा केमिस्ट्री तीनों सेक्शंस में से सबसे अच्छा मेरा गया था केमिस्ट्री एंड आई मिस्ड अप माई मैथमेटिक्स क्योंकि मैथमेटिक्स का क्वेश्चन इस बार बहुत ही हार्ड पूछा गया था. इफ़ यू ऑल नो हार्ड हर साल ही होता है बट इस साल कुछ थोड़ा सा ज़्यादा था मेरे लिए. तो आई मिस्ड अप माई मैथमेटिक्स सेक्शन एंड मेरे को जितना होप था उतना तो अच्छा एग्जामिनेशन नहीं गया था. बट आई थॉट कि लेट्स सी अगर 90 भी टच हो जाए तो ठीक है, आई विल बी ग्रेटफुल. एंड ऑन 12th February वी गॉट आवर JEE रिजल्ट्स एंड गेस हाउ मच आई कुड स्कोर. I scored 82 percentile. That time I got a flashback of my whole 1 year क्योंकि सी 11th-12th में हम JEE के लिए घंटा कुछ प्रिपेयर किए थे, ठीक है. तो उस टाइम जब मेरा 38 परसेंटाइल आया था मेरे को इतना सा भी फ़र्क नहीं पड़ा था. बट दिस टाइम व्हेन आई डेडिकेटेड ऑल माई टाइम एंड एफर्ट्स टू दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन उस टाइम मेरा आ रहा है 82 परसेंटाइल. इवन दो आई एक्सपेक्टेड ऑफ 90 परसेंटाइल. आई थॉट कि वर्स्ट केस सिनेरियो में 85 से ऊपर जाएगा बट 85 से नीचे का हम नहीं सोचे थे. बट मैथमेटिक्स से मेरा बहुत ही नेगेटिव में गया था. मैथमेटिक्स का परसेंटाइल मेरा बहुत ही लो था. सो मैथमेटिक्स पूरा लेके डूब चुका था मेरा जनवरी का फर्स्ट अटैम्प्ट एंड दैट्स वाई आई गॉट 82 परसेंटाइल इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट. एंड दैट्स व्हेन आई गॉट टू नो कि मेरा JEE से कुछ नहीं होने वाला है. आई हैव टू लुक फॉर ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड टू ऑप्ट फॉर VIT, MIT, कॉमेट के, UGEE ये सब एग्जामिनेशन के बारे में मेरे को पता चला. एंड एक लाइन से हम जो फॉर्म भरना चालू किया, हम बोले कि भाई इसमें भी देंगे, इसमें भी देंगे, इसमें भी देंगे, जिसमें होगा सब में एग्जामिनेशन हम देंगे. सो साइड बाय साइड आई वाज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर JEE ऑल्सो ऑब्वियसली क्योंकि अभी अप्रैल अटेम्प्ट बाकी था एंड नोबडी नोज कि आगे क्या होने वाला है. सो आई अगेन गिव माई JEE एग्जामिनेशन ऑन 4th of April. आई थिंक 4th of April था. उस टाइम पे हम एग्जामिनेशन दिए थे एंड व्हेन दी फाइनल स्कोर कार्ड केम ऑब्वियसली मेरे को 82 परसेंटाइल से तो ज़्यादा ही आया था इस बार. बट स्टिल इट वॉज नॉट enough to land me into some good colleges with CSE. तो मेरे को पता चल चुका था कि स्कोर कार्ड मेरा पूरा फालतू है, मेरा कुछ नहीं होने वाला है इससे. नाउ फॉर दोज हु आर क्यूरियस टू नो माई JEE परसेंटाइल, इट इज़ 4 परसेंटाइल लेस देन जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जितना भी है उससे आप 4 परसेंटाइल कम कर लो, उसका उतना ही मेरा परसेंटाइल है. सो या इस परसेंटाइल से तो मेरा कुछ भी नहीं होने वाला था, मेरे को पहले से ही पता था. बट स्टिल आई ऑप्टेड फॉर जोसा काउंसलिंग एंड जोसा काउंसलिंग मेरे को 1-2 GFTI अलॉट हुए थे बट आई डिडंट ऑप्टेड फॉर दोज GFTIs क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग उस टाइम तक मेरा मन था कि हाँ ठीक है अभी न्यूटन दिए हैं, अभी NIAT है, क्योंकि उस टाइम तक मेरे दिमाग में वो न्यू जेन कॉलेजेस का कीड़ा बैठ चुका था. तो मेरे को था कि नहीं ठीक है अब जब ये सब कॉलेजेस में जाने से अच्छा हम क्यों ना न्यू जेन कॉलेजेस में जाएँ. तो मे बी आई एम टेकिंग अ चांस, आई नो, बट व्हाट इफ़ इट वर्क्स आउट. So yeah, that was my JEE story and now that's not it. I'm gonna tell you guys that what were the other examination that I appeared for. So first of all, let me give you guys the names of the examination. First one was UGEE, second was VIT, third was Comet K, my favorite. Fourth was MIT and fifth was West Bengal because obviously I'm living in West Bengal for more than 10 years. Now let me tell you one by one that what was my situation in all these examination. So first of all, let me tell you about WBJEE. I gave WBJEE examination and its results are still pending. God knows what's happening.
So WBJE is already out of the box. Second examination that I gave was VIT, and VIT maybe I scored a rank around 85K or something, and with this rank I'm obviously not gonna get VIT Vellore या फिर चेन्नई का CSE. I was still getting VIT Amravati and VIT भोपाल का CSE, but it was already in category 3, 4, 5. So मेरे को वो ROI के हिसाब से सही नहीं लगा, so I ditched that. एंड नाउ टॉकिंग अबाउट यूजी मेरा क्लियर ही नहीं हुआ था, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट. यूजी में 2 सेक्शंस होते हैं, एक सुपर एंड एक रीप. तो इंटरव्यू तक मेरा बात ही नहीं पहुंचा था, मेरा सुपर का ही कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ था, तो रीप में फिर बात ही हटा उसका. सो फॉर मी यूजी वॉज ऑफ नो यूज़. नाउ इफ़ यू आस्क मी व्हाट इज़ दैट वन एग्जामिनेशन for which I have dedicatedly prepared after JEE, it would be COMEDK 110%. I had high hopes from COMEDK and I was actually scoring good in COMEDK mock test. When I gave the examination of COMEDK and calculated my marks, it was coming around 88, which is pretty decent. इससे आपका रैंक आराम से 10K के अंदर में आ सकता है. So I was prepared for that कि ठीक है 10K के अंदर में ही मेरा रैंक आने वाला है, and with a rank of under 10K या फिर 10K भी you could easily get COMEDK का top 10 कॉलेजेस का CSE. सो आई वॉज ऑन क्लाउड 7 कि हाँ भाई ठीक है, अब तो बैंगलोर जा रहे हैं, IT हब जा रहे हैं, और क्या ही चाहिए. एंड मेरे को बैंगलोर जाना ही था स्टार्टिंग से, क्योंकि मेरे को इतना तो समझ में आ गया था कि बैंगलोर में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही ज़्यादा है. एंड ये हम पहले के भी वीडियोज़ में बोल चुके हैं कि या तो मेरे को पुणे जाना था या फिर मेरे को बैंगलोर जाना था. सो ठीक है, मेरे को उस टाइम तक लगा कि ठीक है अब बैंगलोर जा रहा है, एंड उस टाइम तक आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि ठीक है अब तो मेरा निकल ही जाने वाला है. बट ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कुछ हम सोचें एंड वो काम हो जाए. सो व्हेन दी कॉमेड के रिजल्ट केम, कुछ तो ऐसा स्कैम हुआ है ये लोग का इस बार. ठीक है, सारा स्कैम इसी साल होना है. WBJE का भी रिजल्ट अभी तक पेंडिंग है, VIT का भी स्कैम इसी साल हो गया, एंड COMEDK का भी हेरा फेरी इसी साल हो गया. सो द COMEDK रिजल्ट्स केम एंड माई रैंक वाज नॉट इवन क्लोज टू 15K. जितना रैंक मेरा आया था उससे मेरे को इजीली टॉप 20 कॉलेजेस में मेरे को CSE मिल जाता. बट आई स्टिल डिसाइडेड टू एक्सप्लोर सम अदर ऑप्शंस, एंड दैट्स व्हेन आई केम टू नो अबाउट न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी. एंड उस टाइम से मेरा दिमाग में बैठ चुका था कि हाँ चलो ठीक है, वी आर गोना एक्सप्लोर दीज न्यू एज कॉलेजेस. आई हैव गिवन NIET अ चांस रैदर देन COMEDK कॉलेजेस, क्योंकि COMEDK कॉलेजेस में भी मेरा 20 to 22 lakhs आराम से पहुंच रहा था. टॉप के 25 कॉलेजेस, टॉप के 20 कॉलेजेस में COMEDK का, एंड ROI भी उतना अच्छा नहीं है. सो आई डिसाइडेड कि ठीक है NIET को एक बार चांस देते हैं, एंड रेस्ट ऑफ द स्टोरी यू ऑल नो कि कैसे हम न्यूटन दिए, न्यूटन नहीं हुआ तो फिर हम NIET दिए, मतलब न्यूटन हो चुका था, न्यूटन में नहीं जा पाए तो हम फिर NIET दिए, एंड नाउ आई एम गोइंग टू NIET NIU. एंड ट्रस्ट मी, इस कॉलेज का हम दूर दूर तक नहीं सोचे थे कि इस कॉलेज में भी हम जाने वाले हैं, बट समहाउ आई गोइंग टू दिस कॉलेज, एंड आई जस्ट होप दैट आई डिडंट मेड अ रॉन्ग चॉइस, क्योंकि आई डोंट वांट टू रिग्रेट आफ्टर 4 years कि मेरे को COMEDK का कॉलेज चूज़ कर लेना चाहिए था NIET के अलावा. सो आई just hope that NIET meet my expectations. Anyways, yeah guys, that was today's story time. I just hope that I didn't bore you guys. You better don't tell me in the comment section that I bored you. Now let me clear few confusions which you all might be having. First thing, that even after having 38 percentile, why I decided to take a drop. See, that was my decision. ठीक है, मेरे को उस टाइम तक नहीं पता था कि मेरे को क्या करना है. I was stuck in that situation. Sitting and judging others is very easy. If you'll put yourself in my situation, you'll get to know that why I choose drop. I just didn't wanted to make a wrong choice, and also मेरे को वो मन में गिल्ट नहीं रखना चाहिए था. क्या पता एक साल ट्राई करके देख लेते अगर JEE हो जाता तो. एंड ऑल्सो आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई टूक अ ड्रॉप. ठीक है, क्योंकि हम बताएं कि अगर हम ड्रॉप ईयर में हम बहुत कुछ सीखे. आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम माई ड्रॉप ईयर, एंड बिफोर टेकिंग अ ड्रॉप आई डिडंट इवन न्यू माई कैपेसिटी कि मेरा क्या कैपेसिटी, हम JEE कर भी सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं. बट वॉट वर्कड फॉर मी माइट नॉट इवन वर्क फॉर यू. सो दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, आपको ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है. बट आई वॉन्ट टू गिव यू ऑल अ एडवाइस दैट सी, बिफोर टेकिंग अ ड्रॉप आई डिडंट न्यू कि मेरा कैपेसिटी क्या है. हम JEE के लिए प्रिपेयर तक नहीं किए थे. बट इफ यू आर समवन हु प्रिपेयर्ड वेल फॉर JEE इन दर क्लास 11th 12th एंड नाउ यू आर प्लानिंग कि ठीक है अभी 12th दे देते हैं फिर ड्रॉप ले लेंगे. सी, ड्रॉप लेना टोटली आपके ऊपर में डिपेंड करता है. आई एम नो वन टू कमेंट ऑन दैट, बट आई विल लाइक टू गिव यू ऑल अ रियलिटी चेक कि अगर आपका परसेंटाइल 80 परसेंटाइल. ओके, सो आई एम एम्बैरेस्ड टू से दिस, बट मेरा माइक का चार्ज फिर से ख़त्म हो चुका है. एनीवेज, सो व्हाट आई वाज सेइंग कि अगर आपका परसेंटाइल 80 से नीचे है एंड यू हैव प्रिपेयर्ड वेल फॉर JEE इन योर क्लास 11th और 12th, आई विल नॉट एडवाइज कि आप ड्रॉप लो अगर आपका 80 परसेंटाइल से नीचे आ रहा है. रेस्ट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू. आई एम नॉट एनीवन टू कमेंट ऑन दिस. 38 परसेंटाइल होने के बावजूद भी हम ड्रॉप लिए हैं, एंड आई एंडेड अप स्कोरिंग
that percentile. So that totally depends upon you. Okay, so now the second doubt which you all might be having कि जेई के बारे में किसी को कैसे पता नहीं हो सकता है, पता नहीं हो सकता है. आई एम द लाइव एग्जाम्पल. ठीक है, मेरे को नहीं पता था भाई जेई के बारे में. आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस टॉपिक अगेन, बट ऐसा ही था. आई एम नॉट हेयर मेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ सिनेरियो एंड टेलिंग यू गाइज. दैट इज़ टोटली माई स्टोरी. एंड मेरा स्टोरी ऐसा भी कोई मोटिवेट होने लायक भी नहीं है कि हाँ हम ड्रॉप लिए, मेरे को क्लास 11-12 मेरे को जेई के बारे में नहीं पता था एंड स्टिल आई एम गेटिंग IIT बॉम्बे का CSE. ऐसा कुछ नहीं है. रेस्ट think whatever you want. Also I would like to give you guys 3 lessons that I learned in all these 3 years. हम यहाँ पे सबका नोट बना के बैठे हुए हैं, तो इफ़ यू आर थिंकिंग कि हम नीचे क्या देख रहे हैं, सो दिस इज़ व्हाट इट इज़. सो फर्स्ट थिंग दैट आई लर्न कि व्हेन यू आर एट योर लोएस्ट नोबडी इज़ गोना कम एंड लिफ्ट यू अप, नॉट योर पेरेंट्स, नॉट योर टीचर्स. एंड if you are someone who is getting supported by their parents or teachers, trust me, you are one of the luckiest species in this planet. So it's only you who could motivate yourself. अगर आप एक मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हो, क्योंकि हम ड्रॉप ईयर में बहुत ही हैं, ठीक है, हम बहुत मोटिवेशनल वीडियो देखे हैं, बट 2-3 दिन वो मोटिवेशन रहता है एंड थर्ड डे आपको फिर से लगेगा कि अरे ठीक है यार, करेंगे करेंगे करेंगे. सो यू आर दी वन हु कैन कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड. Second thing that I learned, that remove yourself from the place you are not valued. My class 11th taught me this. I am not talking about any relationship. I am talking about friendship. Remember I told you that we used to hang out a lot and we used to do all this stuff. सब बहुत मस्ती करते थे. But if you ask me that where are those friends, I don't even talk to them right now. ठीक है, इंस्टा पे सब एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है. So trust me, the ones you are thinking कि वो आपके लाइफ में हमेशा रहने वाले हैं, they are not gonna stay. I have seen extreme friendship politics. I can make a whole different video on this topic only, but I'm not comfortable talking about that right now. So if someday I gather courage, I'll talk about that. But now I have made few real friends, touch wood, that I know are gonna stay with me till my wedding also and after that also. So yeah, that was my whole story, my drop year story and everything. सो आई एम रियली सॉरी कि अगर आपको मेरा वॉइस अच्छे से नहीं आ रहा होगा. आई रियली डोंट नो कि लास्ट में ऐसा क्यों होता है, बट एनीवेज या गाइस, दैट इज़ माई स्टोरी एंड आई होप आपको कुछ तो सीख मिला होगा. इफ़ एनी वन ऑफ यू ऑल्सो गेट टू लर्न समथिंग फ्रॉम माई स्टोरी, आई विल फील दैट शेयरिंग वॉज ऑल वर्थ इट. ऑल्सो प्लीज़ like, share, subscribe, because we are so close to 100 followers and I just hope that before uploading my next video we hit 100 subscribers. Yeah, that was it for today's video. I'll see you in my next one. Till then, bye.